friends, this is Dr. Meenakshi. Welcome back to my channel. Today I'm here with task 2 of examination date 29th of July 2023. Right? So let's check statement first. So the statement is many people believe that ज़्यादा लोगों का मानना है countries should produce food for the whole population and import as little food as possible. So ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जिन्हें countries ने उन्होंने चाहिए है कि food दी production इन्नी करन कि सारी population जेडी उन्होंने दी country दी हैगी है, right? So उन्होंने enough होवे, sufficient होवे and जिन्ना घट हो सके उन्ने घट food नू import करवाया जावे. So to what extent do you agree or disagree? सब तो पहला बेटा जी एक डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है. एक द क्वेश्चन होगा do you agree or disagree, एक होगा to what extent do you agree or disagree. So what's the difference between both? Difference is whenever this question statement is do you agree or disagree, then you will write one side essay. Either you will do agree or you will do disagree, right? And whenever the question statement is to what extent do you agree or disagree, then you have to write both side essay beta ji. तो सिर्फ one side नहीं लिख सकते, you have to write both side essay, right? So जिदा introduction की गल की जावे, let's start with the introduction part. So you will start with it is argued that. So arguments are there. ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੂਡ ਦੈਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ought to grow their food products interstate the meaning है पुत्र जी कि अपनी कंट्री दे विच कराने चाहिए ने ग्रो and exactly same as लिख रही है देखो मीनिंग इज टोटली सेम पुत्र जी and depend the least on exotic food or not. Like this you will make sentence. Meaning is same with the G by using whether or. Sorry, whether or. Whether is missing. You have to write here whether. Hanji. So it is argued that whether nations ought to. Nations should. ग्रोथ कराने चाहिए ने अपने फूड प्रोडक्ट्स इंटरस्टेट मीन्स अपनी कंट्री दे विच ही एंड डिपेंड करना चाहिए बहुत घट एक्सोटिक फूड एक्सोटिक मीन्स फॉरेन फूड इंटरनेशनल फूड एक्सोटिक फूड इंपोर्टेड फूड राइट और नॉट या फिर नहीं. So here we have two statements. Number one is former, number two is later पुत्र जी. Former ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਫੂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਸੋ ਦ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇੰਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. राइट सो वन दे विच की है नहीं कराना चाहिए टू दे विच की होगी कॉन्ट्रडिक्शन कराना चाहिए. हुण असीं बॉडी पैराग्राफ 1 च की लिखांगे पुत्र जी क्यों जिहड़ा फूड है उन्होंने इंपोर्ट नहीं कराना चाहिए उन्होंने अपनी कंट्री च क्यों ग्रो कराना चाहिए या सो दैट थिंग यू विल राइट इन बॉडी पैराग्राफ 1. इज इट क्लियर ना. चलो लेट्स वी स्टार्ट डिस्कशन पुत्र जी. सब तो पहला ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਲੋਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਫੂਡ ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਡਸ ਨਾਟ ਨੀਡ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਲੋਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਫੂਡ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਮਾਈਲਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ न्यूट्रिशनल वैल्यू ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. क्यों रीजन भी नाल दवांगे क्यों ज़्यादा होंगी है पुत्र जी क्योंकि ये जोड़ा लोकल फूड है ये प्रिजर्वेटिव्स ने जोड़े या फिर कैमिकल एडिटिव्स ने जोड़े उन्होंने ऐड नहीं किया जाता
ये एडिटिव्स ने जिहड़े प्रिजर्वेटिव्स ने ये साडी सेहत लई की ने बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल ने खतरनाक ने बट इन्हों ऐड नहीं करना पैंदा क्यों नहीं करना पैंदा आप ऑलरेडी गल की है क्योंकि इन्हों थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तो चल के नहीं आना पैंदा ऑन दी अदर हैंड गल की जाए पुत्र जी जोड़ा फूड आप इंपोर्ट कराने उहदे विच प्रिजर्वेटिव्स कैमिकल्स नूं ऐड किया जाता है क्यों किया जाता है सो दैट उहदी जिहड़ी क्वालिटी हैगी है टेस्ट हैगा वो अनचेंज रहे वो चेंज ना होवे जिहड़ा कि साडे लई डेट्रीमेंटल है क्लीयर सो अंडरस्टूड है पुत्र जी लोग ने जिहड़े वो हैल्दी रहणगे अगर वो सिर्फ डिपेंड करनगे लोकल फूड ते गॉट इट दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ठीक है जो आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट नहीं करवाना चाहिए क्योंकि लोकल फूड की ज़्यादा हेल्दी है क्लियर पुत्र जी आई एम गोना राइट हियर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल राइट अबाउट तुसी जेडी दी ओपनिंग लाइन है तुसी अपने विनर बना सकते हो बॉडी पैराग्राफ 1 की ओके हाँ जी नंबर 1 locally produced food does not need to be transported from where it was grown for a long time and travel thousands of miles. So देखो सेम लिखा है सुनो ध्यान नाल दोबारा locally produced food is all about local food, indigenous food, domestic food पुत्र जी या locally grown food does not need to be transported लोड नहीं पैंदी ट्रांसपोर्ट करने दी from where it was grown वो जगह तो जिथे लंबे समय तो ग्रो करवाया जा रहा है and travel thousands of miles यानी thousands of miles traveling की लोड नहीं हैगी exactly so I would say food या fruits and vegetables in that way हाँ जी तुसी food भी लिख सकते हो पुत्र जी you can also write fruits and vegetables which transferred directly from farms to the markets are healthier since reason since there is no need to add preservatives and chemical additives क्यों पुत्र जी क्योंकि आप गल की है भी किसी भी तरह के जोड़े प्रिजर्वेटिव्स ने या कैमिकल्स ने उन्होंने ऐड करने की लोड़ नहीं पैंदी नाल ही लिख दो लिख भी सकते हो which are detrimental to our health जेडे कि डेट्रीमेंटल नहीं साडी सेहत दे लई समझ आ गई सो मेन बेनिफिट की है कि लोग की रहंदे ने पुत्र जी दे रिमेन साउंड इन विंड एंड लिम्ब सो रिमेन साउंड इन विंड एंड लिम्ब मीन्स रिमेन हेल्दी पुत्र जी लोग हेल्दी रहणगे जदों सिर्फ लोकली प्रोड्यूस फूड नूं लैणगे क्यों हेल्दी रहणगे प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए जाएंगे गॉट इट ना पॉइंट इज क्लियर ना ये तुसीं इहदा रिजल्ट लिख सकते हो कम टू सेकंड वन पुत्र जी सेकंड आप गल कर सकते हैं जिदा सब नूं पता है कि जदों आप फूड नूं पुत्र जी यू नो इंपोर्ट कराने तो इंपोर्ट किहदे थ्रू किया जाता किहड़ा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता एयर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है विच मेक्स पॉल्यूशन विच क्रिएट्स पॉल्यूशन जिहदे करके पॉल्यूशन होंदा है बाय एग्जॉस्टिंग फ्यूम्स क्योंकि सबनों पता पुत्र जी फ्यूल यूज़ किया जाता है हम जो फ्यूल यूज़ किया जाता तो फ्यूम्स एग्जॉस्ट होंदियां ने जिहदे करके पॉल्यूशन होंदा है सो आप कह सकते हैं कि अगर आप सिर्फ रिलाई करांगे लोकल फूड ते इंपोर्टेड फूड नूं नहीं यूज़ करांगे नहीं यूटिलाइज करांगे तो दैट मीनस पुत्र जी साडे एनवायरनमेंट नूं असीं बचा सकते हैं वो एनवायरनमेंट जिहड़ा कि क्रिटिकल सिचुएशन दे विचों निकल रहा उहनूं असीं प्रिजर्व कर सकते हैं बचा सकते हैं समझ आ गई बेनिफिट
अगर नहीं है तो मैं एक होर ऑप्शन देनी है थर्ड पॉइंट डी पुत्र जी आप इदा भी लिख सकते हैं कि जो सैल्फ सफिशिएंट फूड है सैल्फ सफिशिएंट फूड में क्यों वर्ड यूज किया सैल्फ सफिशिएंट फूड मीनस जिन्ना फूड तुहाडी पॉपुलेशन नूं चाहिए वो कंट्री उन्ना ग्रो करवा रही है दैट इज ऑल्सो नोन एज सैल्फ सफिशिएंट फूड इज अ गुड वे टू कट द कॉस्ट ऑफ फूड फूड की कॉस्ट की हो जाती घट जाती है एट सम एक्सटेंट वी ऑल नो किवें घट जाती है पुत्र जी सबनों पता है कि जो फूड इंपोर्ट कराया जाता तो जी गवर्नमेंट है हैज़ टू डील विद गवर्नमेंट हैज़ टू डील विद टैक्सेशन ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज एंड अदर चार्जिज ये सारे चार्जिज उन्होंने पैंदे ने तो जिहदे करके वो जो चीज़ां साडे तक पहुँचदियां ने तो उत्ते जिहड़ा टैक्स होने करके उन्हां चीज़ां दा प्राइस वध जांदा है तो अंडरस्टूड है पुत्र जी वो महंगियां होंदियां ने बट जिहड़ियां लोकली प्रोड्यूस कीतियां जाणगियां वो की होणगियां सस्तियां होणगियां क्योंकि उन्हां दे कोई इदां दा टैक्स ट्रांसपोर्टेशन टैक्स एंड ऑल है जिहड़ा वो इंक्लूड नहीं होगा सो अल्टीमेटली कस्टमर्स और अल्टीमेटली नेटिव्स ऑफ द कंट्री वुड गेट बेनिफिट्स सो अल्टीमेटली पुत्र बेनिफिट किहनूं मिलण वाला है obviously customers कौन है natives of the country got it so these are the 3 points मैं तो एक दो लाइंस च दस देनी है बाकी तुसी खुद ट्राई कर सकते हो सेकंड वन पुत्र जी you will start with self sufficient food is a good way to cut the cost of food at some extent कुछ हद तक फिर आप की लिखना पुत्र जी एज वी ऑल नो तुसी इतना वर्ड यूज नहीं कर सकते सो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद इट इज अ ट्रू फैक्ट देयर इज नो आउट ऑफ डाउट इच शक नहीं है सबनों पता है कि टैक्स लगता है या डायरेक्टली इफ और व्हेन मीनिंग विल बी सेम पुत्र जी व्हेन फूड इज इंपोर्टेड एट दैट टाइम उस टाइम तक की होंदा है गवर्नमेंट हैज टू सो गवर्नमेंट को की करना पैंदा पुत्र जी has to come on taxation yes has to deal with the transportation cost taxation and other charges consequently the price की हो जाता अप हो जाता आगे समझ आ गई ना और आप की लिखांगे अगर आप सिर्फ लोकली प्रोड्यूस फूड लोकली ग्रोन फूड और लोकल फूड और इंडिजिनस फूड नो यूज करांगे पुत्र जी तो अल्टीमेटली नेटिव्स विल बी बेनिफिटेड इकोनॉमिकली एग्जैक्टली सो इकोनॉमिक बेनिफिट किनु मिलना है सानू मिलना है गॉट इट सो दैट्स व्हाई ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ इंपोर्ट नहीं कराना ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ कि इंपोर्ट कराना चाहिए सो इंपोर्टेशन को बंद नहीं करना चाहिए ठीक है हम आप ये चीज़ लिखांगे पुत्र जी बॉडी पैराग्राफ 2 दे विच गॉट इट चलो दोस्तों फिर किहड़े पॉइंट्स दिमाग च आए तुहाडे कम ऑन so body paragraph 2 now we will going to write about the later notion exactly so आप हम कहना कि इंपोर्ट कराना चाहिए है इंपोर्टेशन जरूरी है नंबर 1 पुत्र जी एज वी ऑल नो आई विल से देयर इज नो आउट ऑफ डाउट इच बिल्कुल भी शक नहीं है कि जिन्नियां भी कंट्रीज ने पुत्र जी उन्होंने अपना जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे ने जियोग्राफिक ते क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होंदियां ने कंट्रीज दियां सानू सबनों पता है एग्जैक्टली सो अंडरस्टूड है किसी भी कंट्री लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर तरीके दे फ्रूट्स से वेजिटेबल्स नो अपनी कंट्री दे विच ग्रो करवा पावे वो पॉसिबल नहीं है ठीक है सो आप कहांगे थैंक्स टू इंपोर्टेशन पीपल नाउ डेज आर एबल टू रिलिश each and every kind of fruits and vegetables from all over the world so importation का मेन पॉजिटिव की हो गया कि जिहड़े लोग ने पुत्र जो डिफरेंट काइंड्स दे जिहड़े फ्रूट्स ते वेजिटेबल्स ने उन्हां नूं रिलिश कर सकते ने रिलिश मींस एंजॉय करना फूड नूं पुत्र जी
गॉट इट, समझ आ गई। फिर उस तो बाद आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट वियतनाम कंट्री, या इस तो पहला ये भी कह सकते हैं पुत्र जी पूरे वर्ल्ड की गल की जाए तो 3 zones आर देयर, पूरे वर्ल्ड में 3 क्लाइमेटिक जोन्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड किया होया। नंबर 1 फ्रीजिड जोन, नंबर 2 टॉर्रिड जोन, नंबर 3 टैंपरेट जोन। सो हुण आपां कहना कि ਜਿਹੜੀ चीज़ ਨੂੰ टैंपरेट जोन 'ਚ उगाया जा सकता ਉਹਨੂੰ फ्रीजिड ਤੇ टॉर्रिड ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग ने पुत्र जी, समझ आ गई ना। फ्रीजिड का मतलब होंगे ठंडे इलाके, टॉर्रिड का मतलब होंगे वेरी हॉट जिदा इंडिया है, एंड द थर्ड वन इज टैंपरेट। टैंपरेट का मतलब होंगे नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट, राइट। सो टैंपरेट की गल की जाए तो न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल दे सकते हो, तुम वियतनाम की एग्जाम्पल दे सकते हो। वियतनाम के नेटिव जोड़ा फ्रूट है दैट इज लीची, एंड न्यूजीलैंड के कीवी है पुत्र जी, कोई इधर की एग्जाम्पल दे सकते। सो मेन बेनिफिट क्या इंपोर्टेशन का कि जो लोग ने पुत्र वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिलीज कर सकते हैं थैंक्स टू इंपोर्टेशन। यस, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हाँ जी करवाना चाहिए है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट यू विल स्टार्ट विद पुत्र जी, हाँ जी कितों शुरू करांगे आप पॉइंट अपना, आप लिखना है कि ये सच है, ये सच्चाई है। देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट, द मीनिंग की है पुत्र जी इन्ना को भी शक नहीं है, मीन्स सच है। हुण की सच है, दैट एवरी नेशन has its own geographic and climatic conditions। सो हर एक कंट्री दियां अपनी जोग्राफिक अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस ने। Therefore no nation is capable of producing each and every kind of fruits and vegetables। Yes, the whole world is divided into 3 zones, namely frigid, torrid, and third one was temperate। Exactly, as a matter of fact means asal which the food which is grown in temperate zones or zone cannot be produced or grown anywhere else thanks to importation। People are able to relish divergent types of fruits and vegetables। Yes, I hope it's clear पुत्र जी। सो ये फायदा है इंपोर्ट करवाने का। सेकेंड की गल करते हैं पुत्र, सो सेकेंड आप लिखांगे ऑब्वियसली द एक्ट ऑफ मिनिमाइजिंग इंपोर्टेशन माइट लीड टू सीरियस डिप्लोमैटिक स्ट्रैंड्स। डिप्लोमैटिक के 2 मीनिंग्स ने पुत्र जी, नंबर 1 पॉलिटिकल, नंबर 2 इज फॉरेन पॉलिसी। स्ट्रैट्स का मतलब होंगे डिफिकल्टीज, कितना कितने पॉलिटिकल डिफिकल्टीज आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब हुण सानू सबनों पता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता कंट्रीज के दैट मीनस कोई भी कंट्री एक दूसरे के खिलाफ नहीं चाहती, जिहदे नाल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स मीनस
ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਐਨਹੈਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਨਹੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਹਾਰਮਨੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ क्योंकि the benefit है पुत्र जी number 2 gonna write here the act of minimizing the importation might lead to serious diplomatic stress as importation plays a vital role in order to plays a vital role important role play करता है किधर ले पुत्र जी in order to हाँ जी consolidate the relationships among different nations तो जिहड़े पुत्र जी different nations ने उन्हां च जिहड़े relationships ने वो consolidation का काम कौन करता है importation import करना और import export करना exactly नाले लिख लो reducing the risk of armed conflicts and enhance हाँ जी पुत्र जी केड़ी चीज वादी बोलो enhances global peace शांति harmony having the same thoughts stability स्थिरता integrity unity and fraternity fraternity means भाईचारा सो पुत्र ये चीज़ां बढ़िया रहंदियां ने सिर्फ किरे करके है इंपोर्टेशन दे करके और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो कितना किते की होएगा पुत्र जी सीरियस डिप्लोमेटिक स्ट्रेस हो जाएंगे एग्जैक्टली डिप्लोमेटिक मीन्स पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेस मीन्स डिफिकल्टीज गॉट इट सो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर पुत्र जी दैट्स ऑल अबाउट दिस टास्क थैंक यू हैव अ नाइस टाइम बाय बाय मिलते नेक्स्ट टाइम नवे टास्क दे नाल okay and don't forget to subscribe my channel do like share and comment thank you have a nice time